You just change the Grok with the Kalea in this exact same draft, and I'd probably go for Autobots Chronos. But just having same. this final look, you think TR 2-0? Again, it's the same condition for Autobots. So if Rarin and Luck had played super right, maybe take down Eon's first time, and then it'll be 1-1, or otherwise it'll be 2-0. Alright, fair. Seems like there is a possibility of 1-1. And since we're hopping into the round of dawn, ladies and gentlemen, Autobots have got a tight win condition. It is going to be difficult for them to bring the best out of this one. But maybe if they stop Eon early on, maybe if Rarin gets a nasty taunt, it could very well be possible. As we hop back in towards the purples, that means Eon is probably going to go in for the jungle invade as well early on if he's feeling super confident about it. You know, there's something we don't usually do. Producer, I know you're also watching these games. Show me Rarin first if you think it's going to be a 2-0, and show me Eon's if you think it is going to be a 1-1. Let's see if he listens to me. And that's how Fanny goes. Just level 2 and instantly kill के लिए वो चले जाते हैं. Level 2 किया, अंदर गए, टॉन्ट किया, बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया. लक को अब रिकॉल के लिए भी भेजा जा सकता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर रहेंगे एचपी डाउन जाएगी. आप फैन के लिए एक फ्री फूड देंगे, स्पेशल माइग्रेशन कनेक्ट होगा, नॉकडाउन देखने को मिलेगा. लक को जैसे मैंने बोला था रिकॉल करने पे मजबूर किया जाएगा. स्केर्ड हो चले गए रिकॉल के साथ. The fact Eon's running on the lethal ignition also means that the burn damage will potentially hit you, and I'm pretty sure he's going to go in with the flame retribution as well to steal away that physical attack while he's in that fight. It is going to be tough. Now, since he's already taking his own buff as well, Rarin is having a little bit of that priority in the jungle. He's clearing it out pretty well and has got that level for early on. बट आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज़्यादा फर्क डालने वाला है, क्योंकि इयान्स का मोस्ट ऑफ द टाइम जो ध्यान रहेगा वो तो भी करेगा. फैन यहाँ पर आएंगे, गल सिक्योर किया जाएगा. आई थिंक केवल मिस हुई वहाँ पर. Nah, he was waiting for he was waiting for that dash. There we go. And finally खाता खुलेगा, फर्स्ट ब्लड मिलेगा, और अब इयान्स का आतंक यहाँ देखने को मिलेगा. वो जाएंगे, डोमिनेट करेंगे. उनके पास पर्पल बफ नहीं है, और उससे पहले अगर टीम ऑटोबॉट्स टर्टल लेना सिक्योर कर लेते तो एक बहुत अच्छा गुड नोट रहेगा. बट पीछे से पेनल्टी जोन आएगा, पकड़े जाएंगे. रियांश की टारगेटिंग ऑन द पॉइंट, ईगल सिक्योर करेंगे. रारन को आउट ऑफ द बॉक्स किया जाएगा, और इसी दौरान फैनी सब कुछ छोड़ के अपने टर्टल के साथ बिजी है. उनको पता है कि टर्टल यहाँ पर कितना ज्यादा जरूरी है. उनके पास रेट्रीब्यूशन नहीं है, दिक्कत आएगी. टर्टल सिक्योरिटी के बाद डायरेक्ट वो किल जोन पे जाएंगे. अगेन स्पेशल माइग्रेशन कनेक्ट होकर वायलेट रुके, बट डैमेज सफिशिएंट नहीं थी. हाइब्रिड चेस करते हुए नजर आ सकता है, पीछे से परफेक्ट सपोर्ट मिलेगा. क्या किमी को मार पाएंगे? देखिए ये शानदार आउटप्ले ना कई बार बहुत कम देखने को मिलता है. किमी को पता था वो मर सकते थे, बट उनको अपनी टीम पे इतना भरोसा था कि लालच दे के रखो. सबसे फन फैक्ट उस पूरी फाइट में था कि किमी की एनर्जी बार फुल थी उस पॉइंट पे. ही जस्ट लैंडेड वन बेसिक अटैक व्हिच गेव हिम अराउंड 250 एचपी बैक. इसलिए जब वो बेने का अटैक लगा, ही स्टिल हैड द सेम अमाउंट ऑफ एचपी रिमेनिंग, जस्ट वो पैसिव से उनको मिली. एंड देन ही वेंट अवे. हल्का सा डेस्परेशन में हाइब्रिड वेंट इन फॉर एन आई बिफोर द बटरफ्लाई स्टैक्स वर अप. वो आधा सेकंड की जल्दबाजी, and eventually Duba was able to save the life of Kimi there. Such a micro mechanic there, but man, this is so beautiful. And I'm loving the aggressiveness of Autobots, right? Regardless of what's happening, they know what their win conditions are. They know how they need to shut down the enemy. और उसी चीज के पीछे they are stepping on that gas. They are playing aggressive. एंड इसी एग्रेशन के साथ देखिए, एग्रेशन दो धारी तलवार स्केयर. या आपको बेनिफिट तो दिलवाएगी, बट ये आपका नुकसान ज्यादा करा सकती है. अगर आपकी सावधानी हटेगी तो प्रॉब्लम आएगी. एंड अब आई थिंक काइल के ऊपर जाना चाहते हैं. काइल को यहाँ पर एम्बुश किया जाएगा. 4 वर्सेस 1 की सिचुएशन क्रिएट की जाने की कोशिश की जा रही है, बट इसी दौरान 34 सेकंड्स में टर्टल भी आ रहा है. तो आई थिंक ऑटोबॉट्स यहाँ पर मार्क्समैन को उठाना चाहते हैं इंस्टेंट गोइंग फॉर द टर्टल, क्योंकि अगर मार्क्समैन मिलेगा काइल को, अगर अंडर फार्म करने में कामयाब होंगे तो मिड टू लेट गेम में आपके पास एक अर्ली एडवांटेज रहेगा जिसका आप फायदा उठा सकते हैं. और टॉप लेन की तरफ जाना चाहेंगे. हाइब्रिड को पकड़ा जाएगा. हाइब्रिड को यहाँ पर 3 लोग चेस करते हुए नजर आ रहे हैं. उनकी तरफ से अल्टीमेट इस्तेमाल हो चुका है, पॉपअप हो चुका है. इसका मतलब व्हेन ही इज ऑन द टर्टल, हाइब्रिड चेज नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेट का इस्तेमाल नहीं होगा. लक ने अगेन बैरियर लगाया, टेक्टोनिक चार्ज का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इंतजार कर रहे, एक सेट देना चाहते हैं अपने टीम को, बट उससे पहले फाइनल टेक्टोनिक चार्ज आएगा. वायलेट रेकम ऑन द पॉइंट.
ये जो आया था ना, सुपर किल सिक्योर किया एंड पीछे हटना पड़ेगा। रियांश को यहाँ पर दिक्कत होगी, रियांश मारे जा चुके हैं और इसका फायदा अब टीम ऑटोबॉट्स उठा सकती है, वो जीत सकते हैं। ये टर्टल फाइट है, फैनी बैकलाइन पे जाके टारगेट करना चाहते हैं। उनका जो मेन टारगेटिंग है, स्क्विशी हीरोज को निकालो, रैम को टारगेट करो एंड तोबी को टारगेट करो, बट ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो रहे। इसके ये जो टर्टल के आसपास जुगलबंदी चल रही है, इसको यहाँ पर खत्म किया जाएगा। रेट्रिब्यूशन का बखूबी इस्तेमाल, टर्टल सिक्योर करेंगे तो भी ब्लेजिंग ड्यूड का बहुत शानदार इस्तेमाल डैमेज के साथ साथ, और निकलने में भी कामयाब हो गए। पर तू डूबा ने डुबा के रख दिया है, आउटस्टैंडिंग प्ले दिखाया, रैम को टारगेट किया, किल सिक्योर की और अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। फाइनली उनको यहाँ पर धराशाही कर दिया जाएगा। 3-1 वर्सेस 4 से स्केयर्ड वो। The amount of resources he baited out, including the Electro Final Blow, has given so much value to TR. बट यहाँ पर टेक्टोनिक चार्ज का इस्तेमाल लगा के उन्हें स्पेशल माइग्रेशन कैंसिल आउट कर दिया। I mean, just to clear out the minion as well, though, but I don't think so it matters because अब top की tier 1 जाएगी. And Jans, he's just so sneaky, man. He's not leaving that bot lane. Till the very last second, he's like, yeah, no matter what, I will be that stubborn guy. बिकॉज आई थिंक अगर वो कंटिन्यूसली एक लेन पे प्रेशर बिल्डअप करके रखेंगे तो ऑटोबॉट्स के एक महारथी को उस पर फोकस करके रखना पड़ेगा। अगर फैनी को फ्री हैंड देते हैं, फैनी एक ऐसा हीरो है ना जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। आप इजीली टीम फाइट्स में आ सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और इंस्टेंटली वापस अपने जो मेन काम है टर्रेट पुश का, उसको भी कर सकते हैं। कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली दिख भी रही है। Yes, he's going 1-on-1 right now, but I have to say, man, Duba has been playing so very well. Not just in the previous game, even in this one. The amount of room he's got to work with, thanks to Kimi being on that Guinevere and also Rehan playing around him right now, that is immense. And the big reason कि Rehan इतना freely घूम सकते हैं is because क्योंकि आपने mention किया, Fanny है Jans के हाथ में. Going up top though, 1v2 fight. Nah, he's gonna be going back. It's He will fine. just retreat. बॉट लेन का टर्रेट मिलेगा पर टॉप लेन का आपका टर्रेट जाएगा भी, तो ट्रेड ऑलमोस्ट इक्वलाइज हो जाएगा। साथ के साथ अब हमें थर्ड टर्टल देखने को मिलेगा। दोनों टीम को एक एक टर्टल मिल चुका है। इस टर्टल के साथ आपके पास एक टर्टल लीड आएगी, बट उससे पहले यहाँ पर रिसोर्सेज बेट आउट करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। डुबा के रख देंगे। Oh my God, Toby. एचपी पे तो भी भागने की कोशिश थी, बट फैनी आएंगे, कट थ्रोट का इस्तेमाल होगा और इंस्टेंट मेल्टडाउन किया जाएगा। पीछे से वाइल्ड ड्रैगन फिर से आया, दैट कनेक्टिविटी सो गुड। काइल को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। हाइब्रिड पूरी कोशिश करते हुए पॉइंट एचपी पे हाइब्रिड को मेल्टडाउन कर दिया काइल ने। ये दर्शाता है काइल कितने अव्वल दर्जे के गोल्ड लेनर है, और जैसे स्केट ने कहा था गोट लेनर है। Goat laner, man, I'd have to say he is the who stands at the pinnacle in the gold lane here. अव्वल से वहां पर उनकी सिर्फ 20% एचपी थी, हाइब्रिड फुल एचपी पे थे स्केट, फिर भी उन्होंने मेल्ट डाउन करके रख दिया। एंड दैट इज द क्या कहते हैं खूबसूरती ऑफ कैरी। You don't forget that one play of Kyle against Yahi को, जब वो फैनी से उड़ते उड़ते बॉटम लेन से वापस अपने फाउंटेन के अंदर गए हैं। He had 65% HP. Kyle was just standing there recalling after throwing those basic attacks away. बिकॉज उनको पता था ये अटैक्स कनेक्ट होंगे और इसी के साथ फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा पेनल्टी जोन आएगा, उसको कैपिटलाइज किया जाएगा, किल सिक्योर करेंगे। और टीआर अगेन इन देयर डोमिनेटिंग फॉर्म, वो पहुंच चुके हैं उस शिखर पर जहां पर कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। ये डोमिनेशन दर्शाती है कि जो उनका कॉन्फिडेंस है किस चरम सीमा पे पहुंच चुका है। उनको रोकना अब किसी की बात नहीं, हक में तो है, बट अभी कोई भी टीम ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाई इसकी अभी तक। Remember, he did the same thing against Silver as well when they were facing K9, right? Kyle has been known to be nasty. अब फिर से यहाँ पर पकड़े जाएंगे, एयरबॉर्न मिला है, रेड भागने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। किमी की एक्सप्लोजन की ब्लेजिंग ड्यूट आएगा, अच्छा खासा डैमेज आउटपुट निकाला जाएगा, दो लोग धराशायी होंगे और फाइनली टोबी का यहाँ पर चमत्कार देखने को मिलेगा। आईएमयू का बहुत शानदार इस्तेमाल किया, पेनल्टी जोन आया, रियांश यहाँ पर सर्वाइव करेंगी पूरी कोशिश करते हुए और सर्वाइव शायद करने में भी कामयाब हो जाएंगे। हाइब्रिड चेस करना चाहता है पर जो कुनीवर का सपोर्ट आया काबिले तारीफ था। किमी भाग जाए, ही विल बी एबल टू एस्केप, चेज कर रहे हैं और एम्बुश करके रिकॉल करना चाहते हैं, बट जो ये आर्ट ऑफ थीवरी आया ना उसने उनकी पोजीशन रिवील कर दी एंड वो बच के निकल जाएंगे, उन्हें दिक्कत नहीं होगी इसकी। Broken walls, man. He can run around at any place. Oh my God. नहीं आज नहीं, लक किस्मत पलट के रख देंगे। Nice. That was a good play. Again, understanding कि कहाँ पे जा सकता है Kimi, but did he steal it? I think yes. He did steal it. I think- These folks, man, it's so sad That for cable Rarin. and retribution combo. Yeah. Superb. Simply went in, retreat, ran out of there. Kyle?
Again, I think 1v1 with Kyle can be problematic for the RN because Kyle is known, or I will say Carry is known for the tank killing. He's down to what? 50% of the HP. Easily. With just a few basic attacks from Kyle. GG's man, he's already got the Trinity, I'm pretty sure. He's not missing that if anything. खूबसूरती है इस गेम की। यांस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज सस्टेन कर लिया। आई डोंट थिंक इनको फाइट में रहना चाहिए, सावधानी है, या पीछे हट जाइए या फिर मिनियंस क्लियर करके आप एचपी थोड़ी सी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। फैनी वर्सेस बेनिडेटा, व्हाट डू यू थिंक? Fanny. What if it's equal level with equal gears, like both of are on the same level? Fanny. Why? And नहीं, फैनी का काम काइल करते हुए नजर आ रहे हैं। काइल इज लाइक तुम जाओ रिकॉल कर लो, एचपी भर लो, ये किल मैं सिक्योर कर लेता हूँ और जाता हूँ मैं सीधे लॉर्ड की तरफ। लॉर्ड भी लेने में कामयाब हो जाएगा ट्रू रिपर्स। उनके पास बहुत ज्यादा गोल्ड लीड है, स्केयर्ड 4000 की गोल्ड लीड है और एक कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और आरएन यहाँ पे पोक कर रहे हैं। वो बस अपना ना कहते हैं पहुंच होने का एहसास दिला रहे हैं कि हम यहीं पर हैं, तो थोड़ा सावधानी से लॉर्ड की तरफ देखा जाए। Everyone's being zoned out of this one. Luck can try and make a play, but it doesn't matter. Now he's dead. लक का लक खत्म हो चुका है। आई थिंक उनको रिफिल करवाने की जरूरत है क्योंकि उनकी चांदी और उनकी किस्मत दोनों नहीं चमक रहे हैं। पीछे हटेंगे, इंतजार किया जाएगा। अगेन आई विल से वन मोर थिंग, व्हाई ट्रू रिपर्स आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। अगर कोई इनकी जगह कोई और टीम होती, हमने मोस्टली देखी है ये चीज़, लॉर्ड लेने के बाद ईजिली वो फाइट्स पे जाते हैं। आपके पास फैनी, आपके पास गुनीवर है, गोल्ड लीड है, कैरी अनस्टॉपेबल चल रहे हैं, तो आप वहाँ पर किल सिक्योर करते सोचते कि 2 लोग भी हमें मिल जाते हैं, 3 लोग भी मिल जाते हैं तो हम ईजिली टरेट्स पुश कर पाएंगे। बट टीम ट्रू रिपर्स ने पीछे हटने में समझदारी दिखाई। लॉर्ड का इंतजार करेंगे, शायद अब लॉर्ड के साथ इजीली मैच भी खत्म किया जा सकता है। It's possible. Wait करना उनको, they've got to manage the lanes right now. Yes, it's going to be hybrid on the side, but at the same time you have Ian clearing it out as well. Lord bottom से push करेगा. I like the way how he's cutting the way, but he can be dead up top. No, I don't. Yeah, he's dead. He is dead. Hybrid is gone. Hybrid चले गए और अब अगेन 4 वर्सेस 5 हो चुके हैं। आपको पीछे हटना था, लॉर्ड को रोकना था, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। और इसी के साथ होलीशर्ड नहीं है स्केयर्ड, एंड जैसा मैंने बोला था इसी लॉर्ड के साथ मैच को समाप्ति की ओर लेके जाएगा। कोशिश पूरी है, थर्ड डाइव देखने को मिलेगा, कौन अंदर जाएगा ये पहले कह रहे हैं। यहाँ पर पेनल्टी जोन का इस्तेमाल करेंगे, नहीं मुझे नहीं लगता, हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जो 2-0 की हम आशा देख रहे हैं उसके लिए अभी थोड़ा सा वक्त अभी और बाकी है। ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट का मिनिमम वेट रहेगा। Yeah, it's going to be tough right now to try and hold it all down though, but the main thing is, yes, 1.5 minutes for that Lord. It should give enough to Autobots maybe. Hybrid ने plays बहुत अच्छे बनाया, I will kid you not, right? 2-3 बार उन्होंने पीछे जाके सीधा इलेक्ट्रो फाइनल ब्लो विद पेट्रीफाई यूज किया, 4 लोग पकड़े थे लास्ट टाइम जब टोबी को डबल किल मिला था। एक सिमिलर टाइप का कॉम्बिनेशन एंड Autobots are back in the game. पर वो कॉम्बो लगाना बहुत बड़ी बात है। Because I'm pretty sure Toby at this point, once we have a look at the items, will have the Trinity. As I said, he's going in for the Winter Crown right now. But Kyle के पास वो जो Wind of Nature है ना, that will become the problem. Be it for Hybrid, be it for Toby, or even for Rarin in that sense. I think लक का लक फिर से यहाँ से ओवर होने वाला, उनको पकड़ा जाएगा। टेक्टोनिक चार्ज का इस्तेमाल भागने के लिए करना पड़ रहा है। आप इस कदर गोल्ड में पीछे चल रहे हैं, आप इस कदर इस गेम में पीछे चल रहे हैं। बॉट का जो इन्वर्टर था जा चुका है, टॉप के इन्वर्टर की बारी है और अगेन फैनी यहाँ पर अंदर जाएंगे, कोशिश की जाएगी, बस डैमेज आएगा, इंस्टेंट शटडाउन मिलेगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है अगर आप यहाँ पर फॉलो अप करेंगे। सावधानी यही है, टीम ट्रू रिपर्स थोड़ा सा पीछे हट जाइए, आवश्यकता बहुत ज्यादा इस चीज की। True, but I don't think so it's going to be that problematic, right? Yes, I do like the fact that Autobots are constantly taking that map space now away from them. क्योंकि पता है यही एक मौका है कि that they can open up the map. If anything, Hybrid can freely clear out that top lane. You know the position of Kyle, or at least you have got a vague idea of where he could be. Since it's just 4 more seconds for the Lord. Autobots, they've got the next few to try and make a play. Ians आते ही सबसे पहले अपने पर्पल बफ की तरफ जाएंगे. So you have got a window of the 2 to 3 seconds to maybe catch on to someone if you want. But Duba has been the problem, man. Yes, I know it's Ians who's annoying the heck out of you, but it's Duba that enables Kimmy to play so aggressive because of the presence of this Jushin and that cover. We go again. किमी को यहाँ पर टॉन्ट लगा है बट इजीली वो स्टेप करने में कामयाब हो जाएंगे। बस डैमेज आएगा, टेक्टोनिक चार्ज और इसी के साथ यहाँ पर पेनल्टी जोन रियांश की तरफ से वैनी आएंगे, बस डैमेज देंगे मेगा किल के साथ। रियांश एक और किल अपनी झोली में डाल के ले जाएंगे, लक को भी यहाँ पर धराशायी किया जाएगा और लॉर्ड से पहले आपकी टीम
खत्म हो चुके हैं यार स्केर्ड। There's just 2 people remaining right now. Yes, I understand. And even though Hybrid has got the Petrified ready, but I don't think so it kind of matters. Hold on a second. They actually want to go for the end. Yes, that's what I was about to say कि वो नहीं वेट करना चाहते, वो लॉर्ड की तरफ नहीं जाएंगे, इंस्टेंट मिनियन क्लियर करेंगे और बेस को यहीं पर खत्म करने की कोशिश की जाएगा। तो भी बचे तो हैं, तो भी कोशिश पूरी तो कर रहे हैं, बट दैट बर्स्ट डैमेज बाय कैरी, एंड कैरी का जो टर्रेट डैमेज है दैट इज इनसेन। डायरेक्टली टर्रेट को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। क्रिस्टल प्रायोरिटाइज कर रहे हैं काइल, मिनियंस के अभाव में पीछे हटना पड़ेगा, मिनियंस की कमी यहाँ पर खलती हुई नजर आ रही है। इमॉर्टैलिटी पॉपअप होगी यहाँ पर, सॉरी ज़ूक्सिन प्रॉपर सपोर्ट करना चाहते हैं, नॉक करेंगे बट दिक्कत होगी, पेनल्टी जोन का बखूबी इस्तेमाल हुआ, बचाने में कामयाब होंगे, यहाँ सर्वाइव करेंगे, बट इसी के साथ रियांश मारे जाएंगे। रियांश की मृत्यु यहाँ पर दिक्कत कर सकती है, किमी यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, रेम को पकड़ा जा रहा है, फिर से मिनियंस मिलेंगे और मिनियंस के साथ देखिए मिनियंस यहाँ पर बहुत काइल यहाँ पर नहीं स्केट, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा हमको। Holy smokes, man. What a damn defense from Autobots. They tried everything and Toby's still chasing down. Kimi wants to run back to safety as he will finally reach where Kyle is. But what a defense. This has been one of the biggest trends of tenacity that we have seen. Lord जाएगा उनके हाथ से 100%. But I think so they've at least bought them some crucial few minutes now. देखिए ऑटोबॉट्स ने डिफेंस बहुत शानदार किया, बट यह अपने अंत को रोका नहीं है, बस थोड़ा डिले कर दिया है। अंत तो होने वाला है क्योंकि लॉर्ड इजीली मिल चुका है आपके पास। मेन क्रिस्टल की बात की जाए भी बहुत ज़्यादा लो है, लॉर्ड का एक अटैक एंड बेस खत्म हो जाएगा। तो लॉर्ड को आपको जितना हो सके बेस से दूर रखने की जरूरत है, लॉर्ड को बेस से पहले रोकना पड़ेगा, एंड वो मुझे होता हुआ संभव दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। पॉसिबिलिटी सिर्फ उस चीज की इसलिए है बिकॉज यू गॉट लक, जो कि गार्डियंस बैरियर लगा सकता है, कैन टेंड टू होल्ड इट डाउन, एंड Raren as well, जो कि एक बहुत बीफी फ्रंट लाइन है। Oh my God, never mind, Jans, every single hope has now been thrown down in the drain. और इसी के साथ रारेन को यहाँ पर पकड़ा जाएगा। रारेन को पकड़ने के साथ ही काइल डायरेक्टली लॉर्ड के पास जाने जाते, बट काइल पकड़े जाएंगे, उनकी मृत्यु होगी। वो टर्रेट निकालना चाहते थे बट शायद उसके लिए देर होगी, और इसी चीज का फायदा उठा के डूबा ने बैक लेन पे जाके टर्रेट डिस्ट्रॉय कर दिया, क्रिस्टल तोड़ दिया, और इसी के साथ उम्मीदें भी तोड़ दी टीम ऑटोबॉट्स की। 2-0 की अंक तालिका और ट्रू रिपर्स ऑन द टॉप। I'm surprised that True Rippers have got nothing to show on the camera this time around when they were playing. I think they are saving for the semi-finals. Based. All right. Though, but a really solid game being shown by them, right? Even though Duba खेल रहे थे आज, did not disappoint at all. If anything, probably again one of the most MVP-worthy performances we are getting from a new lad showing up at such a point in the entire event when teams are finally, you know, getting together with the feeling that all right, we're probably getting that coordination and synergy, getting ready to maybe face some more challenges in the future. उस exact point के ऊपर आके अब डूबा को लेकर आया है, and with the reputation that he had to uphold, he did a very good job. And I think Duba और other teams can use their silent players जिनको आप बहुत रेयरली यूज करते हैं एज अ देयर ट्रम्प कार्ड्स, क्योंकि ओपोनेंट्स फिर आपके उस प्लेयर्स को इतना एनालाइज नहीं